Hey friends, I am CA Kriti. Welcome back to my channel. How are you all doing? रिजल्ट का ज़्यादा टेंशन तो नहीं है ना? डोंट वरी, सब बढ़िया होगा. Today we will discuss about चाणक्य नीति. What all lessons I used when I was a student. नॉर्मली जब लोग नानी घर जाते हैं तो उनको ढेर सारा टॉयज़ मिलता है, कपड़ा मिलता है. बट जब मैं नानी घर जाती थी तो मुझे मेरे नाना जी ढेर सारा बुक्स देते थे. My grandfather was a teacher, a professor, a lawyer, and also an excise inspector. He was a great personality. My mother used to tell me about him, about how he used to study and how he became such a great personality. In fact, I remember when I was in class 6th, a new SST teacher came to my class. She was giving her introduction. She told that she is from Bhagalpur. I was very happy and I told her that my nani ghar is also Bhagalpur. So she asked me about my grandfather, and coincidentally, my grandfather had taught her when she was in college. Felt so proud at that moment, I can't tell you all. I was very happy. My grandfather inculcated the habit of reading in us. He used to give us many books. Like whenever we visited there, he used to call the shopkeeper to bring all different types of books, and he used to ask my mother, choose whatever books you want for your kids and yourself. भगवद गीता और रामायण और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और बालकों की बातें, पंचतंत्र. We used to buy books from book fair also. So one of my favorite book was Chanakya Niti. My mother used to read that book for us. There are few points which have made a very remarkable mark in my mind and which I've used throughout my CA journey when I was a student. And in fact, Chanakya Niti is such a relevant book. Like whenever you are in a problem, you go through these books and you will definitely get a solution. Whenever you are in trouble, like you want to know how I should react, what I should do, what should a student do, what should a wife do, what should a mother do, what should a teacher do, what should a wise man do, how one should make a friend. Everything is given in a detailed manner in this Chanakya book. Chanakya was such a brilliant person, and it is our luck that this man is from India. So among 4-5 points which I want to discuss with you all, the first one is education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एडुकेशन है तो आपको कोई बेस्ट फ्रेंड का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा. अगर आप दुखी हैं तो आपको पता है दुख में कैसे रिएक्ट करना है. अगर आपके पास खुशी है तो फिर आपको पता है अपना खुशी किसके साथ शेयर करना है. कोई एक्चुअल इन पर्सन दोस्त का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. आप कहीं भी जाओगे आपका रिस्पेक्ट होगा. जैसे अभी मैं सीए बन चुकी हूँ तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग बोलते हैं अरे ये देखो ये सीए है, मिलो इनसे, ये सीए है. तो अपने आप में बहुत अच्छा फील होता है. लाइक जैसे कोई डार्क स्किन वाले लोग हैं तो उनके अंदर क्या होता है, कभी कभी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है. लेकिन अगर वो एडुकेटेड है, कुछ बन के काबिल हो चुके हैं, तो उनके पास अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. ऑल्दो मैं दिखने में शायद सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास इनर ब्यूटी है. जैसे आजकल लोगों का ब्यूटी का डेफिनेशन ही बदल गया है. कोई ये नहीं पूछता है कि अरे उसकी बहू कैसी लगती है. लोग ये पूछते हैं उसकी बहू क्या करती है. वो गूगल में है, वो सीए है, वो एंटरप्रेन्योर है, वो अपना पार्लर चलाती है, उसका बुटीक है. सुंदर है कि बंदर है, दिखने में कैसी हो तो मैटर ही नहीं करता आजकल. ठीक है, दैट इज़ वाई एडुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. लाइक अमंग ऑल द 3 सिस्टर्स आई वॉज द डार्क मोस्ट. सो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी
अगर आप पढ़ोगे, पढ़ाई में अच्छे रहोगे, तो आप कैसे दिखते हो वो मैटर ही नहीं करेगा। एंड ये बात तो मैंने अपने कान में गांठ बांध ली थी। एंड मुझे पता था एनी हाउ एनी वे मुझे पढ़ाई तो करना ही है, एंड अच्छा लेवल वाला पढ़ाई करना है, ताकि कोई ये ना बोले कि आप दिखने में सुंदर नहीं हो। जिस दिन मेरा CS का कॉन्वोकेशन था एंड CA का कॉन्वोकेशन था, वो द पिक्चर मेरे लाइफ का द बेस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज उस दिन इतना कॉन्फिडेंस था मेरे पास कि स्किन कलर तो मैटर ही नहीं करता है। दैट डे आई रियलाइज्ड। नेक्स्ट इज learning is like a cow of desire. It like her yields in all seasons. Like a mother, it feeds you on your journey. Therefore, learning is a hidden treasure. It means विद्या अर्जित करना एक कामधेनु गाय के समान है। जैसे कामधेनु गाय को जो भी विश हो वो पूरा कर देती है, राइट। तो उसी तरह अगर आपके पास नॉलेज है तो आप हर मौसम में, इन ऑल सीजन्स, लाइक इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर सैड, हर समय आपके पास कुछ करने के लिए रहेगा। अगर आप दुखी भी हैं तो भी आप खुश रहोगे, अगर आप खुश भी हैं तो आप अपना खुशी दूसरों के साथ शेयर करोगे। अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो तो भी आपके पास उस प्रॉब्लम का सल्यूशन रहेगा। इसलिए नॉलेज को क्या बोलते हैं, एक हिडन ट्रेजर। अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर आप कितना भी दुखी क्यों ना हो, कितना भी प्रॉब्लम में क्यों ना, आपके पास हमेशा एक बैकअप रहेगा, एक सल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट इज let not a single day pass without your learning a verse, half a verse or a fourth of it, or even one letter of it, not without attending to charity, study or any other pious activity. ये तो मैंने अपने लाइफ में एवरीडे यूज़ किया था। अगर आप स्टूडेंट हैं, होता है ना कोई कोई दिन पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो उस दिन भी कम से कम आप थोड़ा सा पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ो। चैप्टर नहीं पढ़ने का मन कर रहा, एक पैराग्राफ पढ़ो। एक पैराग्राफ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एक सेक्शन पढ़ लो। कुछ भी पढ़ लो, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कम से कम एक सिलेबस भी गो थ्रू कर लो। लेकिन एवरी डे यू हैव टू रीड समथिंग, नॉट इवन एज अ स्टूडेंट। अब सीखे बनने के बाद जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम गो थ्रू नहीं करेंगे अपडेट्स, आपका नॉलेज जो है वो वेस्ट होते जाएगा। कुछ नहीं करने का मन कर रहा है तो थोड़ा सा बस उसको टच कर लो। लाइक कोई कोई दिन होता है जब मूवी देखने का मन कर, ठीक है आप मूवी देख के आ जाओ, लेकिन रात में थोड़ा सा पढ़ लिया। कुछ नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो पास्ट पेपर का सल्यूशन कर लिया, कुछ नहीं तो मॉक टेस्ट कर लिया या रिवीजन टेस्ट पेपर कर लिया। कुछ भी करना है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना है कि ये नहीं कि दूरी हो जाए, थोड़ा सा रहे, ताकि नेक्स्ट डे विथ फुल प्रेशर, फुल और जोश आप पूरा पढ़ाई करोगे। ओके। द स्टूडेंट, द सर्वेंट, द ट्रैवलर, द हंग्री पर्सन, द फ्राइटेंड मैन, द ट्रेजरी गार्ड एंड द स्टीवर्ड, these 7 ought to be awakened if they fall asleep. चाणक्य कहते हैं कि अगर ये लोग सो रहे हैं तो इनको उठा देना चाहिए। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक, खजांची। दिस वन इज़ माई मॉम्स फेवरेट एक्चुअली। जब भी मैं पढ़ती थी तो नींद बहुत आता था। लाइक मैं तो ये कहती हूँ कि जिस आदमी को नींद नहीं आता उसको पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए। वो नींद नहीं आने का बीमारी ही ख़त्म हो जाए। आप रामायण पढ़िए, बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, आपको जो पसंद है वो आप पढ़ सकते हैं। आपको नींद तो आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। जब मैं सोती थी तो मेरी मम्मा मुझे उठाती थी, यही कहती थी कि चाणक्य कहते हैं कि सोते हुए बच्चे को ज़रूर उठाना चाहिए, बिकॉज बच्चा जो है वो इंडिया का यूथ भविष्य है। एंड अगर बच्चा सो जाएगा तो इंडिया सो जाएगा। इसलिए बच्चे को तो, सोते हुए बच्चे को, वो भी पढ़ाई करने वाले बच्चों को तो डेफिनेटली उठा देना चाहिए। मैं तो मॉर्निंग पर्सन हूँ। मुझे याद है मम्मा कभी 4 बजे या 3 बजे जब भी मैं बोल के सोती थी कि मम्मा कल 4 बजे उठाना, तो मम्मा घड़ी अलार्म के पहले ही उठा देते कि बेटा उठो 4 बज गया, बिकॉज उठते उठते भी समय लग जाता था। तो मम्मा 3:30 बजे से शुरू कर देती, बेटा उठो 4 बज गया, बेटा उठो 4 बज गया, एंड उठते उठते 4 बज ही जाता था।
सो ऑल थैंक्स टू माई मॉम एंड डैड, वो लोग उठाते थे इसलिए मैं पढ़ पाई एंड फिर आज मैं जो भी हूँ बस उन्हीं की वजह से हूँ. सो थैंक्स अ लॉट. नाउ द लास्ट वन and my favorite one. Learn one thing from a lion, one from a crane, 4 from cock, 5 from crow, 6 from a dog and 3 from an ass. वाओ, चाणक्य कितने महान आदमी थे. गधा से भी वो 3 चीज़ सीख लिए थे. शेर तो खैर जंगल का राजा, उनसे तो सीखने बनता है. बाकी मुर्गा, क्रो से भी सीख सकते हो आप. वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 4-5 गुण सीख सकते हो. सो डेफिनेटली इफ़ यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स, प्लीज़ कमेंट. प्लीज़ से दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स जिनका भी रिज़ल्ट आने वाला है या कुछ मोटिवेशन चाहिए, उनके साथ शेयर करिए ये सारे वर्ड्स. डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा and they will feel happy within themselves. So among these animal, dog is my favorite, जो मैं यूज़ करती थी. डॉग तो सबसे पहले बहुत वफ़ादार होता है. अपने गोल के प्रति वफ़ादार रहिए. कुछ भी हो, अपना गोल अचीव करना है आपको. ब्रेव रहिए डॉग की तरह. फेल हो गए तो भी डट के खड़े रहना है, स्ट्रांग रहना है, क्योंकि कल अपने को पास होना है. कुत्ता को कभी सोता देखा है? वो आधे नींद में सोता है, पूरा अलर्ट रहता है. कुछ भी हो, थोड़ा भी खुटक करिए, कुत्ता सबसे पहले उठ के भौंकने लगेगा. तो उसी तरह आपको भी जब सोना है तो आधे माइंड में आपको याद रखना है कि मेरा सीए का गोल है, तो मुझे आधे घंटे का नैप लेना है, तो आधे घंटा ही का ही नैप लेना है. 1 घंटा 2 घंटा नहीं सो जाना है. और कुत्ता खाता कैसे है? कभी ज़्यादा मिला तो वो ज़्यादा खा लेगा, कम मिला तो कम खा लेगा. उसी तरह स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? छोटा छोटा मील खाना चाहिए, लेकिन बार बार खाना चाहिए. ज़्यादा पेट भर के एक ही बार खा लेंगे तो क्या होगा? नींद आएगा तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे. सो अच्छा, कल अगर आपको अच्छा सोना है तो आज आपको नींद का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. सो एंडिंग दिस on a very positive note. Stay happy, stay blessed. All the best for your results. Thank you so much.